یہ خط سن کر ولید بن عبد الملک بڑا متاثر ہوا، کچھ دیر تک خاموش بیٹھا رہا، گردن جھکی رہی، پھر کہنے لگا، اچھا ہم نے اپنے بھائی سلیمان پر مہربانی اور عنایت کی۔ پھر اپنے بھتیجے کو اپنے پاس بٹھایا۔ یزید بن محلب نے جب دیکھا کہ سلیمان کا خط پڑھ کر ولید متاثر ہوا ہے اور اسے یہ بھی یقین ہو گیا ہے کہ اب اس کی معافی کے آثار نظر آتے ہیں، تب اس نے ولید بن عبد الملک کو مخاطب کر کے کہنا شروع کیا، امیر المؤمنین، ہم پر آپ کے احسانات بہت زیادہ ہیں، چاہے انہیں کوئی اور بھول جائے مگر ہم نہیں بھول سکتے، چاہے کوئی انہیں مانے نہ مانے لیکن ہم ہمیشہ معترف رہیں گے۔ ہمارے خاندان نے آپ کی اطاعت میں مغرب اور مشرق میں آپ کے دشمن کے خلاف جو نمایاں خدمات انجام دی ہیں وہ ظاہر ہیں، مگر پھر بھی آپ ہی کے احسانات ہم پر بہت زیادہ ہیں جن کا کوئی معاوضہ نہیں ہو سکتا۔ یزید بن محلب کے یہ الفاظ سن کر ولید بڑا خوش اور مطمئن ہوا، پھر اس نے یزید کو بیٹھ جانے کے لیے کہا۔ یزید بیٹھ گیا۔ ولید نے اسے معافی دے دی، اس کی بیڑیاں کھلوا دیں، اس کے بھائیوں کی بیڑیاں بھی کھلوا کر اس نے اس طرح یزید اور اس کے بھائیوں کو معاف کر دیا اور انہیں واپس سلیمان کے پاس چلے جانے کا حکم دے دیا۔ حجاج بن یوسف نے یزید اور اس کے بھائیوں پر جو ہرجانہ عائد کیا تھا ولید نے اسے بھی معاف کر دیا۔ ساتھ ہی ولید نے حجاج کو لکھ دیا، چونکہ یزید اور اس کے خاندان والے سلیمان کے پاس ہیں اس لیے میں ان کے خلاف کوئی کارروائی نہیں کرنا چاہتا، تم بھی انہیں چھوڑ دو اور آئندہ کبھی ان کے بارے میں مجھے کوئی خط وغیرہ نہ لکھنا۔ حجاج کو جب ولید کا یہ پیغام پہنچا تو وہ بھی خاموش رہا۔ یزید کے بھائی جو بصرہ میں قیام کیے ہوئے تھے ان سے بھی اس نے درگزر کیا۔ اس طرح وہ یزید بن محلب اور اس کے بھائیوں کو فراموش کر گیا تھا۔ معافی ملنے کے بعد یزید اور اس کے بھائی سلیمان عبد الملک کے پاس گئے۔ یزید بڑا سیانہ اور عقل مند انسان تھا۔ وہ سلیمان کو لباس کے اوضاع اور طراز سکھاتا تھا اور اس کے لیے عمدہ کھانے تیار کرواتا تھا اور بیش قیمت تحائف بھیجتا، جن کے جواب میں سلیمان بھی یزید کی عزت اور منزلت کرنے لگا تھا۔ اب سلیمان عبد الملک یزید بن محلب کے اس قدر قریب ہو گیا تھا کہ اس کا یہ حال ہوا کہ جو کوئی تحفہ اور عمدہ چیز اس کے پاس آتی اس میں سے آدھی ضرور یزید کو بھیجتا، بلکہ جو لونڈی اسے بھلی معلوم ہوتی اسے یزید کے پاس بھیج دیتا۔ اس غیر معمولی مراسم کی اطلاع مخبروں اور قاصدوں نے ولید کو پہنچا دی۔ ولید نے سلیمان اور یزید کے اس قدر قریبی تعلقات کو ناپسند کیا۔ اس نے ایک شخص حارث بن مالک کو بھیجا اور اس سے کہا کہ سلیمان کو میرا یہ پیغام پہنچاؤ کہ اسے اپنے خاندان کی رسم و رواج کی مخالفت کرنے والے امیر المؤمنین کی اس بات کا علم ہوا کہ کوئی تحفہ یا عمدہ چیز تمہارے پاس آتی ہے تو تم آدھی یزید کے پاس بھیج دیتے ہو، اور تمہاری لونڈیوں میں سے بھی کوئی لونڈی تمہارے پاس آتی ہے اور اس کے طہر کا زمانہ ابھی پورا نہیں ہوتا کہ تم اسے یزید کے پاس بھیج دیتے ہو۔ دیکھو وہاں جا کر ان افعال پر میرے بھائی سلیمان بن عبد الملک کو برا بھلا کہنا اور لعنت ملامت کرنا، اور جو حکم تمہیں دیا گیا ہے اسے لفظ بلفظ پہنچانا۔ بہرحال ولید بن عبد الملک کا پیغام حارث سلیمان بن عبد الملک کے پاس اس وقت پہنچا جس وقت سلیمان قرآن مقدس کی تلاوت کر رہا تھا۔ حارث نے سامنے پہنچ کر سلام کیا، سلیمان نے جواب نہیں دیا، تلاوت سے فارغ ہو کر سلام کا جواب دیا اور پھر اس کی طرف سر اٹھا کر دیکھا۔ حارث نے وہ تمام باتیں اس سے کہہ دیں جو ولید نے اس سے کہنے کے لیے کہی تھیں۔ وہ باتیں سن کر سلیمان کا چہرہ غصے سے بگڑ گیا، کہنے لگا کہ اگر تم پر کبھی میرا بس چلا تو تمہارے ہاتھ کاٹ دوں گا۔ حارث کہنے لگا کہ میرا کیا قصور، میں تو صرف پیغامبر ہوں، جو حکم مجھے ملا ہے اس کی میں تعمیل کر رہا ہوں۔ اس طرح حارث بیچارہ ناکام لوٹ گیا اور واپس جا کر اس نے جو سلوک سلیمان نے اس کے ساتھ کیا تھا اس کا اظہار اس نے ولید بن عبد الملک سے نہ کیا۔ وہ ایسا ایک احتیاط کے تحت کر رہا تھا کہ کہیں اس کی وجہ سے دونوں بھائیوں میں بگاڑ نہ پیدا ہو جائے۔ بنانہ بن حنظلہ اپنے کمرے میں اکیلا بیٹھا تھا کہ دروازے پر گدیری نمودار ہوئی۔ وہ شرما رہی تھی، چوکھٹ پر آ کر کھڑی ہو گئی، آنچل کا پلو اس نے منہ میں دبا لیا تھا۔ بنانہ بن حنظلہ مسکراتے ہوئے اس کی ہر حرکت کو دیکھ رہا تھا۔ پھر بنانہ کو گودیری کی دھیمی آواز سنائی دی، ابھی ساول میرے پاس گئی تھی، اس نے مجھے آپ کا پیغام دیا ہے، کیا آپ نے مجھے بلایا ہے؟ بنانہ بن حنظلہ کے چہرے پر خوشگوار مسکراہٹ نمودار ہوئی، پھر کہنے لگا، کیا یہ گفتگو کرنے کا طریقہ ہے کہ تم چوکھٹ پر کھڑی ہو اور میں یہاں بیٹھا ہوں؟ یہاں نشست پر آ کر بیٹھو، پھر سنو میں کیا کہنا چاہتا ہوں۔ گودیری آہستہ آہستہ آگے بڑھی، جس نشست کی طرف بنانہ بن حنظلہ نے اشارہ کیا تھا وہاں وہ بیٹھ گئی، گردن جھکی ہوئی تھی۔ بنانہ بن حنظلہ برابر اسے ٹکٹکی باندھے دیکھ رہا تھا، کبھی کبھی چور نگاہوں سے گودیری بھی اسے دیکھ لیتی تھی۔ بنانہ بن حنظلہ نے اپنے تکیے کے نیچے ہاتھ ڈالا، سفید رنگ کے کپڑے کی ایک تھیلی نکالی، ایک جگہ سے اٹھا، تھیلی اس نے گودیری کی گود میں رکھ دی۔ بنانہ بن حنظلہ کی اس حرکت پر گودیری پریشان ہو گئی تھی، سوالیہ سے انداز میں وہ بنانہ بن حنظلہ کی طرف دیکھنے لگی۔
बनाना दोबारा अपनी जगह पर बैठ गया और उसने गुदेरी को मुखातिब किया। गुदेरी, हालात, वक्त और तुम्हारे बाप ने मुझे और तुझे दोनों को एक राह का मुसाफिर बना दिया है। हम दोनों की मंजिल एक ही है, हम दोनों के जीने का मकसद भी एक है। तुमने मेरे साथ रिश्ता जोड़ने के लिए जो हामी भरी है उसकी मुझे इस कदर खुशी है, इसका बयान अल्फाज में कर ही नहीं सकता। ये जो थैली मैंने तुम्हारी गोद में रखी है ये मुख्तलिफ जंगों में माले गनीमत से मेरा हिस्सा है। इसमें कुछ जेवरात भी हैं, नकदी भी है। अब ये तुम्हारा हक है इसलिए कि तुम मेरी जिंदगी का साथी होने की हामी भर चुकी हो। ये अपने पास महफूज कर लो। बनाना बिन हंजला यहीं तक कह पाया था कि एक बार फिर गुदेरी ने अजीब से अंदाज में उसकी तरफ देखा और फिर कहने लगी, मैं इन्हें कहाँ संभालती फिरूंगी? बेहतर नहीं कि आप इन्हें अपने पास ही रखें? मुझे अगर कभी जरूरत हुई तो मैं आपसे मांग लिया करूंगी। बनाना बिन हंजला ने हल्का सा कहकहा लगाया, फिर बोल पड़ा, नहीं, ये तुम अपने पास रखो। तुम्हारी हवेली में कोई चोर डाकू नहीं आते, ये चीजें वहां भी महफूज हैं। हाँ, मुझे अगर किसी शय की जरूरत हुई तो मैं तुमसे मांग लिया करूंगा। बनाना बिन हंजला के इन अल्फाज पर गुदेरी के चेहरे पर मुस्कुराहट नमूदार हुई थी, ताहम अपने मुंह पर पल्लू का आंचल रखते हुए उसने चेहरा छुपा लिया था। फिर वो खड़ी हो गई और कहने लगी, क्या अब मैं जाऊं? जवाब में बनाना बिन हंजला मुंह से कुछ न बोला। उसने असबात में गर्दन हिला दी थी, जिस पर गुदेरी मुड़ी, फिर उस कमरे से निकल गई। आहिस्ता आहिस्ता चलती हुई गुदेरी जब अपने हवेली के दरवाजे पर गई तो ठिठक सी गई। दरवाजे पर सांकरा खड़ी थी। गुदेरी को देखते ही उसने पूछ लिया, कहाँ गई थी और ये तुम्हारे हाथ में क्या है? गुदेरी मुस्कुरा दी, फिर मजाहिया से अंदाज में सांकरा को मुखातिब करके कहने लगी, तुम तो इस तरह मेरी बाज़पुर्स कर रही हो जैसे मैं चोरी करके आ रही हूँ। मुझे बनाना ने बुलाया था। ये जो थैली मेरे पास है उन्होंने ही दी है। इसमें नकदी, जेवरात और कुछ कीमती अशिया हैं जो उन्हें माले गनीमत में उनके हिस्से में मिलती रही हैं। ये मुझे उन्होंने दी हैं और ये भी कहा है कि अपने पास रखो और इसमें से उन्हें किसी चीज की जरूरत हुई तो वो मुझसे मांग लिया करेंगे। गुदेरी की इस गुफ्तगू के जवाब में सांकरा कुछ कहना चाहती थी कि गुदेरी फिर बोल पड़ी, सांकरा, अभी सूरज गुरूब हो गया है, कल सुबह तुम मेरे साथ बाजार जाना। मैं बनाना बिन हंजला के लिए कुछ कपड़े खरीदना चाहती हूँ। गुदेरी की इस गुफ्तगू के जवाब में सांकरा जवाब देना ही चाहती थी कि ऐन दरवाजे के सामने खरीम बिन उमर नमूदार हुआ। गुदेरी चूंकि दरवाजे की ओट में थी, दरवाजे के सामने सांकरा खड़ी हुई थी, लिहाजा हरीम बिन उमर ने सांकरा ही को मुखातिब किया। मैं गुदेरी से मिलना चाहता हूँ, उससे एक इंतहाई अहम मौजू पर गुफ्तगू करना चाहता हूँ, क्या थोड़ी देर के लिए तुम उसे बाहर भेज दोगी? सांकरा ने तेज निगाहों से खरीम बिन उमर की तरफ देखा, फिर कहने लगी, हवेली के अंदर आपके दुश्मन तो नहीं रहते जो मैं गुदेरी को बाहर भेज दूं? आप अंदर आएं, दीवान खाने में बैठें और जो कुछ कहना चाहते हैं आराम से गुदेरी से कहें। इतनी देर तक गुदेरी भी दरवाजे के सामने आ गई और खरीम बिन उमर को मुखातिब करके कहने लगी, भाई आप अंदर आए ना, बाहर खड़े होकर अजनबियों की तरह क्यों गुफ्तगू करते हैं? इस पर खरीम बिन उमर हवेली में दाखिल हुआ। सांकरा और गुदेरी दोनों उसे दीवान खाने की तरफ ले गईं। दोनों के साथ वो बैठ गया। फिर सांकरा ने खरीम बिन उमर को मुखातिब किया, गुदेरी अभी अभी बनाना बिन हंजला के पास से लौट कर आ रही है। फिर सफेद कपड़े की जो थैली गुदेरी ने उठा रखी थी वो सांकरा ने उठाई और फजा में लहराते हुए कहने लगी, इस थैली में नकदी, जेवरात और दूसरी अशिया हैं। ये गुदेरी को बनाना बिन हंजला ने दी हैं ताकि ये अपने पास हिफाजत से रखे। ये माले गनीमत में से उसका हिस्सा है। सांकरा की इस हरकत पर गुदेरी ने एहतजाजी अंदाज से उसकी तरफ देखा था। फिर सांकरा दोबारा बोल पड़ी, इसमें डरने की क्या बात है? क्या तुम कोई चोरी कर रही हो? सब जानते हैं कि बनाना बिन हंजला तुम्हें पसंद करता है और तुम उससे मोहब्बत करती हो। एक तरह से तुम दोनों को मंसूब भी किया जा चुका है। फिर बनाना तुम्हें कोई चीज देता है और उसमें छुपाने की क्या जरूरत है? तुम तो खुशकिस्मत हो। मुझे देखो, मैंने जहां मोहब्बत की है वहां मुझे धौंस, धमकी और धक्कों के सिवा कुछ भी नहीं मिला। सांकरा की गुफ्तगू में एक मजाक छुपा हुआ था, लिहाजा खरीम बिन उमर ने उसकी इन बातों को महसूस नहीं किया, बल्कि उसके चेहरे पर मुस्कुराहट खेल गई थी। गुदेरी ने तेज निगाहों से उसकी तरफ देखा, फिर उसके कान में सरगोशी की, तुम्हें शर्म नहीं आती? खरीम भाई के सामने इस तरह की गुफ्तगू करती हो? याद रखना, बनाना बिन हंजला ने मुझ पर इंकशाफ किया था कि खरीम भाई तुमसे नफरत नहीं करते, तुम्हें चाहते जरूर हैं, लेकिन दूर इसलिए रहते हैं कि धर्मदास के साथ तुम्हारी सगाई हो चुकी है। इस सिलसिले में मैं खुद बनाना बिन हंजला से मुलाकात के बाद खरीम भाई से भी मिली। ये मुलाकात आज दोपहर के वक्त हुई और मेरे सामने भी खरीम भाई ने इस बात का इकरार किया कि वो तुमसे नफरत नहीं, मोहब्बत करते हैं। लेकिन ये मोहब्बत इस वक्त तक अपने अंजाम को नहीं पहुंच सकती जब तक तुम दो कश्तियों में सवार हो। वो ये भी कह रहे थे कि ये जरूरी नहीं कि जिससे मोहब्बत की जाए वही जीवन का साथी हो। मुझ पे उन्होंने ये भी इंकशाफ किया कि अगर धर्मदास के साथ सांकरा की शादी हो जाती है तो ये धर्मदास का उस पर हक है,
اس का मतलब ये नहीं कि अगर मैं सांकरा को चाहता हूँ तो सांकरा की शादी मेरे साथ ही होनी चाहिए। गुदेरी यहीं तक कहने पाई थी कि सांकरा अपना मुंह गुदेरी के कान की तरफ ले गई और कहने लगी, तुम्हें शर्म नहीं आती? दोपहर के वक्त तुम्हारी गुफ्तगू करीम बिन उमर के साथ हुई और तुमने अभी तक मुझे नहीं बताया। याद रखना, अगर तुम मुझ पर यह इंकिशाफ कर देती कि करीम बिन उमर ने खुद तुम्हारे सामने ये एतराफ़ किया है कि वो मुझसे मोहब्बत करते हैं, तो अब तक मेरे खून में कई गुना इजाफा हो चुका होता। अच्छा, अब इस गुफ्तगू को छोड़, पहले करीम भाई से पूछो मुझसे क्या कहने आए हैं। गुदेरी ने सांकरा से सरगोशी की थी। इस पर सांकरा संभल कर बैठी, करीम बिन उमर की तरफ देखा और फिर कमरे में उसकी आवाज गूंजी, दरवाजे पर खड़े होकर आप कह रहे थे कि आप गुदेरी से कुछ कहना चाहते हैं, जबकि गुदेरी आपके सामने बैठी हुई है। आप कहें क्या कहना चाहते हैं। अगर आप समझते हैं कि ये गुफ्तगू आप अलहदगी में करना चाहते हैं तो मैं चली जाती हूँ। करीम बिन उमर ने तेज निगाहों से सांकरा की तरफ देखा, फिर कहने लगा, एक तो तुम बोले जाती हो, किसी दूसरे को बात करने का मौका ही नहीं देती। मैंने तुमसे कब कहा है कि मैं अलहदगी में गुदेरी से गुफ्तगू करना चाहता हूँ? तुम यहाँ बैठो, जो कुछ मैं कहना चाहता हूँ तुम्हारी मौजूदगी में कहूँगा। सुनो गुदेरी, गुज़िश्ता मुहिम में मोमिल पर हमलावर होने से पहले मैंने तुम्हारे बाप से मुलाकात की थी। तुम्हारे मुतालिक मैंने तफसील के साथ गुफ्तगू की। तुम्हारा बाप तुम्हारे मुतालिक फिक्रमंद था, तुम्हारी खैरियत दरियाफ्त करना चाहता था। जब मैंने उससे ये कहा कि वो यहाँ बहुत खुश है तो उसकी खुशी की कोई इंतहा नहीं थी। मैंने बिनाना से तुम्हारी मोहब्बत और चाहत का इजहार भी किया और तुम्हारे बाप ने यहाँ तक इजाज़त दे दी कि अगर बिनाना बिन हंजला के साथ तुम्हारी शादी कर दी जाए तो उसे कोई एतराज़ नहीं होगा। मैंने उससे ये भी पूछा कि क्या तुम इस शादी में शिरकत नहीं करोगे, तो कहने लगा कि अगर मैं शादी में शिरकत करता हूँ तो राजा दाहिर नहीं बल्कि नकामरा कबीले का बड़ा सरदार मोमिल भी उसके खिलाफ हो जाएगा। लिहाजा अगर गुदेरी की शादी यहीं रहते हुए चुपचाप हो जाए तो इसमें ज्यादा बेहतरी है। अब तुम कहो मेरी बहन, क्या कहना चाहती हो? गुदेरी चुपचाप बैठी रही, उसकी गर्दन झुक गई थी, मुंह से उसने कुछ न बोला। इस मौके पर सांकरा थोड़ी देर तक उसे जवाब तलब निगाहों से देखती रही, फिर उसकी पसलियों के करीब उसने कोहनी मारी और कहने लगी, क्या भेड़ की तरह सर झुकाकर बैठ गई हो? ऐसे मौके बार बार नहीं मिलते। जब वो तुमसे पूछ रहे हैं तो अपनी मर्जी बताओ, चुप रहोगी तो पछताओगी। मुझे देखो, बोलती हूँ तब भी मुझे कोई अहमियत नहीं देता और तुम चुप रहती हो तब भी तुम्हारी इतनी अहमियत है। इस मौके पर चुप रहोगी तो नुकसान उठाओगी। एक बार फिर सांकरा ने कोहनी मारी और कहने लगी, अब गर्दन उठाओ और बोलो, जो वो पूछ रहे हैं उसका जवाब दो। गुदेरी ने आहिस्ता आहिस्ता अपनी गर्दन सीधी की, करीम बिन उमर की तरफ देखा और कहने लगी, करीम भाई, आप मुझे बहन कहकर पुकार चुके हैं। जब आप मुझे बहन समझते हैं तो भाई अपनी बहन के मुतालिक जो फैसला करेगा मुझे मंजूर होगा। मैं कोई एतराज़ नहीं करूंगी। अगर मेरा बाप चाहता है कि चुपचाप तरीके से ही शादी हो जाए तो अपने बाप की गैर मौजूदगी में एक भाई की हैसियत से आपका फैसला मेरे लिए आखिरी होगा। जो कुछ आप करेंगे मैं एतराज़ नहीं करूंगी, बखुशी कबूल कर लूंगी। गुदेरी के इन अल्फाज से सांकरा की खुशियों की कोई इंतहा न थी। उसने दोनों बाजू फैलाकर गुदेरी को अपने साथ लिपटा लिया, फिर कहने लगी, ये बात हुई ना, अब आई हो राह रास्त पर, बस यूं जानो तुम्हारा तो काम हो गया। फिर सांकरा गुदेरी के कान के करीब मुंह ले गई और कहने लगी, मेरे लिए भी दुआ करो कि भगवान करे मेरा भी काम इसी तरीके से हो जाए। जवाब में गुदेरी ने भी सरगोशी की, आज ही तो करीम भाई आए हैं और सुबह सुबह तुमने उनसे मुलाकात भी की है और तुम कह रही हो कि तुम अपनी माँ और धर्मदास को मनाने की कोशिश करोगी कि धर्मदास इस सगाई से दस्तबरदार हो जाए। अगर वो दस्तबरदार हो जाता है तो फिर तुम्हारा भी रास्ता साफ है। करीम बिन उमर तुम्हें अपना लेंगे। सांकरा कहने लगी, इस सिलसिले में मैंने अपनी माँ से बात की है। जब मेरी माँ तैयार है तो अब माँ ही इस सिलसिले में धर्मदास से बात करेगी। मेरे ख्याल में चंद रोज तक कोई ना कोई फैसला सामने आ जाएगा, फिर मैं फखरिया अंदाज में करीम बिन उमर को इस फैसले से आगाह करूंगी। शायद उस रोज मैं खुलेआम ये कह सकूंगी कि मैं करीम बिन उमर की हूँ और उसके लिए पैदा हुई हूँ। करीम बिन उमर फौरन उठ खड़ा हुआ और गुदेरी को मुखातिब करके कहने लगा, गुदेरी, मैं तुम्हारा शुक्रगुजार हूँ। इस लिहाज से भी ममनून हूँ कि तुमने सारा फैसला मुझ पर छोड़ दिया है और इस लिहाज से भी तुम्हारा शुक्रगुजार हूँ कि तुम मुझे अपना भाई ख्याल करती हो और अपने बाप के बाद सारी जिम्मेदारी मुझ पर छोड़ती हो। गुदेरी, यहाँ तुम्हारी हैसियत करीम बिन उमर की बहन की सी है। इस सिलसिले में बिनाना बिन हंजला से भी गुफ्तगू करूंगा, फिर मुनासिब मौका देखकर तुम्हारी शादी का एहतमाम भी कर दिया जाएगा। अब मैं जाता हूँ, तुम दोनों बहनें बैठकर बातें करो। करीम बिन उमर के इन अल्फाज पर सांकरा तड़प कर उठ खड़ी हुई, दीवान खाने के दरवाजे पर आई। करीम बिन उमर को रोकने के लिए अपने दोनों बाजू फैला दिए, फिर करीम बिन उमर को मुखातिब करके कहने लगी, ये कैसे हो सकता है कि आप थोड़ी देर बैठें और चले जाएं? बैठे, मैं माँ को आपके आने की इत्तला करती हूँ। खाना आप यहीं खाइएगा।
इसके बाद आपको जाने दूंगी। अभी आपने जाने की कोशिश की तो याद रखिएगा लड़ाई हो जाएगी। सांकरा की इस गुफ्तगू के जवाब में करीम बिन उमर कुछ कहना ही चाहता था कि गुदेरी भी अपनी जगह पर उठ खड़ी हुई और करीम बिन उमर को मुखातिब करके कहने लगी, भाई आप बैठें, खाना आप हमारे साथ खाकर जाएंगे। इस पर करीम बिन उमर कहने लगा, अगर मैंने खाना तुम दोनों के साथ खाना है तो बनाना बिन हंजला ने क्या खता की है? मेरे ख्याल में उसे भी बुला कर लाते हैं, चारों इकट्ठे बैठकर खाना खाते हैं। तुम दोनों बैठो, मैं बनाना बिन हंजला को बुला कर लाता हूँ। सांकरा वहीं बाजू फैलाई खड़े रही और कहने लगी, नहीं, हरगिज नहीं, अगर आप चले गए तो वापस नहीं लौटेंगे। मैं सावल को भेजती हूँ, वो बनाना बिन हंजला को बुला कर लाती है। आप चुपचाप उसी नशिस्त पर बैठ जाएं जहां से आप उठे हैं। सांकरा की बात मानते हुए करीम बिन उमर वहां बैठ गया। गुदेरी दरवाजे की तरफ जाते हुए कहने लगी, करीम भाई, मैं ये थैली रखा हूं, फिर आती हूँ। इस पर सांकरा गुदेरी से मुखातिब हुई, थैली रखने के साथ साथ माँ को भी इत्तला कर देना कि करीम बिन उमर और बनाना बिन हंजला खाना यहीं खाएंगे। साथ ही सावल को भेज दो, वो बनाना बिन हंजला को बुला लाए। मैं यहीं बैठती हूँ, ये ना हो हम दोनों चले जाएं और ये चुपके से खिसक जाएं। सांकरा की गुफ्तगू से करीम बिन उमर हंस दिया था। सांकरा उसके सामने बैठ गई थी और गुदेरी वहां से चली गई थी। थोड़ी देर बाद सावल हवेली से निकली ताकि बनाना बिन हंजला को बुला कर लाए। उसी के पीछे पीछे सांकरा की मां गुदेरी के साथ दीवान खाने में दाखिल हुई। उसे देखते ही अपनी जगह पर खड़े होते हुए करीम बिन उमर ने उसका इस्तकबाल किया। सांकरा की मां रोजन ने आगे बढ़कर करीम बिन उमर की पुश्त पर प्यार से हाथ फेरा, फिर सांकरा के पहलू में बैठ गई और कहने लगी, करीम मेरे बेटे, तुमने अच्छा किया कि गुदेरी और बनाना बिन हंजला को एक रिश्ते में जोड़ दिया। बनाना ने ये थैली गुदेरी को दी है और उसने मेरे हवाले कर दी है ताकि मैं संभाल कर रखूं। गुदेरी बहुत अच्छी लड़की है, सांकरा जरा शरारती है, बातें बहुत करती है। मेरे ख्याल में यह आपको तंग भी करती होगी। सांकरा ने माँ की बात काटी और कहने लगी, मैं इन्हें क्या तंग करूंगी, उल्टा ये मुझे तंग करते हैं। रोजन किसी कदर संजीदा हो गई थी। कुछ देर सोचती रही, फिर उसने करीम बिन उमर को मुखातिब किया, करीम मेरे बेटे, आज सुबह जो सांकरा के साथ तुम्हारी गुफ्तगू हुई है उससे सांकरा ने मुझे आगाह कर दिया है। मुझे इस बात की खुशी है कि सांकरा तुम्हें चाहती है और तुमसे मोहब्बत करती है, और तुमने भी इसकी बात मानते हुए कहलाया है कि अगर धर्मदास इससे दस्तबरदार हो जाए तो तुम इसे अपनाने में रजामंद हो जाओगे। बेटे, मैं इसी पर तुम्हारी शुक्रगुजार हूँ। इस सिलसिले में 1-2 रोज तक धर्मदास से बात करूंगी। मुझे उम्मीद है कि मैं धर्मदास को इस पर आमादा करने में कामयाब हो जाऊंगी कि वो सांकरा से दस्तबरदार हो जाए। जिस रोज ऐसा हुआ, मैं तुम्हारी और सांकरा की शानदार तरीके से सगाई करूंगी। मैं समझूंगी मेरी जिंदगी में वो मेरे लिए खुशियों का सबसे बड़ा दिन होगा। तेज और शरारत आमेज बातें करने वाली सांकरा इस मौके पर बिल्कुल चुप थी। शर्म के बायस उसकी गर्दन झुक गई थी, ताहम कभी कभी चोर निगाहों से वो करीम बिन उमर की तरफ देख लेती थी। रोजन मजीद कुछ कहना ही चाहती थी कि ऐन उसी वक्त दीवान खाने में बनाना बिन हंजला दाखिल हुआ और करीम बिन उमर के पहलू में आकर बैठ गया। बनाना जब अपनी जगह बैठ गया तो रोजन ने उसे मुखातिब किया, बनाना मेरे बेटे, मैं बेहद खुश हूं कि तुम गुदेरी का इस कदर ख्याल रखते हो। रोजन ने अभी अपनी बात मुकम्मल नहीं की थी, वो कुछ और कहना चाहती थी कि बीच में बनाना बोल पड़ा, खातूने मोहतरम, खुदा के फजल से मेरा मामला तो सीधा है। गुदेरी के बाप ने भी अपनी रजामंदी का इजहार कर दिया है कि मैं गुदेरी को और गुदेरी मुझे अपना सकती है, लेकिन खातूने मोहतरम, अब मामला सारा आपके सर पर है। क्या आप सांकरा और मेरे भाई करीम बिन उमर की राह साफ नहीं कर सकती? बनाना बिन हंजला यहाँ तक कहने पाया था कि करीम बिन उमर ने उसे कोहनी मारते हुए चुप रहने के लिए कहा, जिस पर बनाना खामोश हो गया। कोहनी मारते हुए सांकरा, गुदेरी और रोजन ने भी देख लिया था, लिहाजा मुस्कुराते हुए रोजन बोल पड़ी, बनाना मेरे बेटे, तुम्हें और करीम बिन उमर को फिक्रमंद होने की जरूरत नहीं है। सांकरा से मुताल्लिक मैं तुमसे ज्यादा फिक्रमंद हूँ। इसमें कोई शक नहीं कि सांकरा धर्मदास को ना चाहती थी, ना कभी उसके साथ अपनी पसंद का इजहार किया है। बस इसके बाप का वो अजीज है। अजीज जानते हुए इसकी सगाई इसके बाप सुंदरदास ने इसके साथ कर दी थी। उस वक्त हालात कुछ पेचीदा थे। राजा दाहिर का बेटा जयसेना सांकरा को हासिल करने के दरपे था। उधर नकाबरा कबीले का सरदार मोमिल भी हाथ धोकर सांकरा के पीछे पड़ा हुआ था, और दोनों में से हर एक की यही ख्वाहिश थी कि सांकरा को अपना लें। मेरे शौहर इन दोनों में से किसी के साथ भी सांकरा को ब्याहना नहीं चाहते थे, लिहाजा धर्मदास के साथ जो सगाई और मंगनी का मामला था, ये एक तरह से उजलत में हुआ। इसमें यूं जानो सांकरा की मर्जी और मंशा शामिल नहीं थी। अब जबकि सांकरा करीम को पसंद करती है तो उसकी मर्जी, उसकी रजामंदी को सब पर फौकियत दी जाएगी। मुझे उम्मीद है कि मैं चंद रोज तक हालात को संवार लूंगी
اور دھرمداس کو اس بات پر آمادہ کر لوں گی کہ وہ سانکرا سے دستبردار ہو جائے تاکہ کریم بن عمر اور سانکرا ایک دوسرے کے ہو سکے۔ ان کے ایک ہونے سے ہی میری خوشی، میرا سکون اور میرا روشن مستقبل ہے۔